Hello and welcome you all guys to the RJ Education. Now today in this video we are starting the force and energy lesson. Okay. Now just see, in this video we are going to learn what is force and types of forces. So a lot to know, a lot to discuss. As always, let's get started. Now just see, what is force. First you need to understand what is force. Actually force is the pull. Okay. Force is the pull or push acting on a body. Force is a pull or push acting on a body. Now you see, suppose you are trying to push this box. Suppose you are trying to push this box. Okay, तो आप इस पे फोर्स लगा रहे हो. You are applying force on it. You are just pushing it. तो आप क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो. इसकी वजह से इसका क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. ये आगे जा रहा है. ओके तो ये आगे जा रहा है, आप इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, इसलिए वहां पे मूवमेंट हो रही है. ओके तो फोर्स इज अ पुश. अभी ये तो हो गया पुश का एग्जांपल. नाउ जस्ट सी द पुल. इफ डोर इज देयर and you are standing here and you are trying to open that door. And you are pulling that door towards yourself. So this is also a force. So force is a push or pull acting on any object. So here object is, this box is a object. Okay, ये box क्या हो गया, object हो गया. Okay, object हो गया. Now this door is also object, but it is not necessary that the object will be non-living only. Living things are also object. Now just see, we are standing on earth and we are also object. Gravitational force is continuously acting on us, but do we feel? हमें लगता है कि कोई हमें खींच रहा है? No, it's means we are not feeling कि ऐसा भी फोर्स होता है जिसे हम फील नहीं करते, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बट दैट फोर्स इज एग्जिस्टिंग. वो फोर्स एग्जिस्ट होता है. ओके सो force is a push or pull acting on any object. And what is object? Object is a thing on which force is acting. Means object एक ऐसी thing होती है जिस पे force act हो रहा होता है. Okay, जिस पे भी force act हो वो क्या हो गया, object. Okay, वो क्या हो गया, object. And what is force? Force is a push or pull acting on any object. I hope the force and the concept of object is clear to you. Now gravitational force. Just come to the gravitational force. What is gravitational force? Suppose this is our earth. Okay. Now in center of earth, जो earth का center है, okay, यहाँ पे earth का center होगा. The center of earth is revolving itself. It's revolving itself. That's why it's creating the magnetic lines. Okay, it creating the magnetic lines, and because of this rotation, it is having a gravitational force. Gravitational force is the force which is pulling all objects towards the center of gravity. ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो सब चीजों को क्या करता है, अर्थ की तरफ खींचता है. ओके, दैट फोर्स वी आर कॉलिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ जस्ट सी, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, हमने मान लिया, ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अर्थ खींचती है. बट द क्वेश्चन इज दैट अगर अर्थ सब चीजों को अपनी तरफ खींचेगी, ओके, अर्थ इज, इफ वी आर टेकिंग अ बॉल छोड़ो, ये लो पेन. ओके, इफ आई एम थ्रोइंग इट अप देन इट इज गोइंग इन स्काई. ओके, रॉकेट के जैसे उड़ जाएगा, सैटेलाइट के जैसे छोड़ देगा. नो, इट इज नॉट मूविंग अप, इट इज कमिंग डाउन. ये क्या होता है, ये नीचे आ जाता है. व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन. आपने अभी जंप मारी. ओके, आपने अभी जंप मारी. इफ आई एम जंपिंग हियर, then I will come down on earth. Yes or no? I will fall down. I will not go up. Why? Because of gravitational force. Everything was pulling towards the earth. Earth is pulling everything towards itself. You are having yo-yo. Okay, yo-yo देखा है. Otherwise, who those are not knowing the yo-yo.
एक रस्सी ले लो, ओके, और उससे कुछ बांध दो, कुछ चीज बांध दो उस रस्सी के एक सिरे पे और एक सिरा अपने हाथ में पकड़ो और वो घुमाओ ऐसे, ओके। आप घुमा रहे हो तो वो घूमता है, ओके, इट इज रोटेटिंग अराउंड योर हैंड। अगर आप ऐसे घुमा रहे हो तो वो घूमता है, लेकिन वो क्यों घूम रहा है? क्योंकि आप उसे घुमा रहे हो, क्योंकि आप उसे घुमा रहे हो, आपके हैंड से वहां पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, इसीलिए वो घूम रहा है, ओके। ये बात है। उसी तरह से अर्थ क्या कर रही है, अर्थ भी यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसीलिए वो घूमता है, अदरवाइज इट इज नॉट रिवॉल्विंग। अगर अर्थ नहीं होगी बीच में तो वो रिवॉल्व नहीं होगा। दिस इज द क्लियर थिंग। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाई द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और हमारे सैटेलाइट्स क्यों घूमते हैं अर्थ के अराउंड, ओके। दिस थिंग इज क्लियर। सी नाउ इन माय हैंड टू पेन्स आर देयर। व्हाट न्यूटन सेड, इन दिस, जो भी अर्थ पे, जो यूनिवर्स पे, पूरी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स है, ओके, इन ऑल यूनिवर्स दैट ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर देयर, in between two objects there is a gravitational force, there is a gravitational force means इसका मतलब क्या हो कि दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। आपके पास कोई दो चीजें होंगी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। देखो, सी आई एम हैविंग टू पेन्स, सो दे आर अट्रैक्टिंग टू ईच अदर। उसने ऐसा बोला, दिस पेन इज अट्रैक्टिंग टू मी एंड आई अट्रैक्ट टू दिस पेन, दिस बोर्ड इज अट्रैक्टिंग टू मी, देन व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू दिस बोर्ड ऐसे, then why this pen is not colliding to each other? This theory he had given. What he told that the gravitational force, अभी इसका सिंपल एक हम एग्जांपल लेते हैं, ओके, सिंपल। लेट मी टेक अ पेपर, ओके, लेट मी टेक अ पेपर, yes, now just see, paper is here, now this is a paper and this is pen. If I'm dropping it down, then which thing will fall down fast? Which thing will reach the ground fast? Obviously the pen, okay, obviously the pen is falling first. Means क्या हो रहा है, पहले पेन गिर रहा है। इससे क्या समझ में आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है, वो वेट पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर वेट ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशन ज्यादा होगा, वेट अगर ज्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा, ओके। दिस थिंग हैज क्लियर टू यू, ओके। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, व्हाट न्यूटन सेड टू इन हिज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। यहाँ पे आया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन्स का। अभी उसने ये यूनिवर्सल क्यों है, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्स में चल सकता है। आप इस मीन्स मिल्की वे में, हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं, वी आर लिविंग इन मिल्की वे, ओके, वी आर लिविंग ऑन अर्थ एंड आर अर्थ इज सिचुएटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। सो इफ वी आर गोइंग इन एंड्रोमेडा, हमारी पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, एंड्रोमेडा, इफ वी आर गोइंग इन दैट गैलेक्सी देयर आल्सो दिस फॉर्मूला इज वर्किंग। तो इतना सोचा न्यूटन भाई साहब ने। सो व्हाट न्यूटन हैड सेड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the mass of a object। अभी ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट्स क्यों बोला है यहाँ पे, दो मास क्यों है, एक जो बड़ी वाली बॉडी रहेगी, एक जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वो, और एक जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट रहेगा वो, ओके। सपोज आप अर्थ को ले लो और मून को ले लो। इफ आई एम टेकिंग दिस पेन, ओके, दिस इज पेन एंड दिस इज मी, इस पेन को और मुझे ले लो, तो दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स, और एक छोटा एक बड़ा, तो कैपिटल एम इज स्टैंडिंग फॉर द बिग ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल एम इज स्टैंडिंग फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात? अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एम, दैट मीन्स अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। दैट मीन्स इफ एज द मास इंक्रीजेस द फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है, उसका इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज होगा। यस और नो? नाउ जस्ट सी हियर, अभी इससे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली हमें, क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर एक बॉडी है, सी, अगर हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर दे, यहाँ पे अगर हम कोई कांस्टेंट ले ले और इसको मैथमेटिकली सॉल्व करें, तो टू प्रोडक्ट्स इन दो में से, ये दो ऑब्जेक्ट में से अगर कोई जीरो हो जाए, ओके, इफ वन मास विल बी जीरो, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट का कोई मास ही नहीं है, तो ये क्या होगा, पूरा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, जीरो।
और फिर फोर्स क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स फोर्स है ही नहीं। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्टिंग मीन्स उसको अप्लाई करने में, उसको एग्जिस्टेंस होने के लिए, उसका एग्जिस्टेंस होने के लिए क्या करना पड़ता है, दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी होता है। सो आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन नेक्स्ट